आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है पंकज और प्रतीक ने, और वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया हाइपरलूप बाय इंडियन रेलवेज 2x फास्टर देन प्लेन्स। 2 times फास्टर देन होगा ना। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Remember Hyperloop? A dream that many Indians like us saw? Hyperloop didn't materialize, at least not in India. But the matter did not settle yet in the government level. Our Indian Railways is finally gearing up to develop India's first own Hyperloop. India has shown constant efforts to develop a technology rather than importing one from a foreign country. When it comes to railways, you have a lot of examples. Train 18, Kavach, Metro Rails and many more. Now, India will be competing with the rest of the world in the race of making its own Hyperloop. The Indian Railways has partnered with IIT Madras to develop a made-in-India Hyperloop facility. The project involves a test track and a prototype Hyperloop pod estimated to cost around 8.34 crores. A group of 70 students of IIT Madras are working on Aviskar Hyperloop, an effort to develop India's own Hyperloop. They ranked globally in top 10 in the SpaceX Hyperloop pod competition in 2019, the only team from Asia to do so. They were also awarded the most scalable design award at the European Hyperloop Week 2021. As they approached the Indian Railways in March this year for an investment, the ministry immediately agreed to collaborate and bear the cost for this prestigious effort. Railways will collaborate to develop a contactless pod prototype and also the first of its kind Hyperloop test facility at its Discovery campus at Thaiyur. In 2017, India's then Railway Minister Suresh Prabhu expressed his interest in the Hyperloop technology. Maharashtra ex-CM Devendra Fadnavis and his team even started working to get a Hyperloop in India from Mumbai to Pune, and Virgin Hyperloop started working on exporting their technology to India and develop a track between these cities. But nothing moved since then. But the center has been closely monitoring the development on Hyperloop, expecting one to develop in India. Under the project Aviskar Hyperloop, we will get a test facility that is at par with the Virgin Hyperloop in United States, but would cost much less. The Hyperloop's low energy requirement has drawn the Indian Railways towards the project, a technology that can help to attain carbon neutrality. For more updates on India's infrastructure, subscribe to our channel MRB. Have a nice day. भाई जब ट्रेन की बात की जाती है ना, तो आपको दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भागने वाली ट्रेन्स नज़र आती हैं वो बुलेट ट्रेन्स नज़र आती हैं, जो कि मेरा ख्याल है 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा जो है वो भाग सकती हैं। लेकिन मैं अब हाइपरलूप की बात करूं तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन होगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जो है खासतौर पर हज़ारों किलोमीटर का जो सफ़र है वो बहुत आसानी से तय हो सकेगा। अच्छा, हम लोगों ने बिल्कुल आई थिंक इनिशियल डेज ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब जब हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तब ये एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने सुना था 2019 में। बहुत हैरान हुए थे। हाँ, मैं एग्जैक्टली कैसे हो सकता है, हम लोग बहुत हैरान होते कि कैसे एक पॉड, इट्स लाइक मतलब सिलेंडर की शेप का होता है, और वो कहते हैं जैसे वाकई में बुलेट की तरह वो मतलब जल्दी से भाग जाएगी और चली जाएगी, इतनी फास्ट है। तो उस टाइम पर हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। और अभी यहाँ पर मैं इस बात का जवाब भी देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप इंडियन प्रोजेक्ट्स क्यों देखते हैं, तो उसका ये फायदा होता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता नहीं है, इस तरह तो का एटलीस्ट हम लोगों को कि दुनिया में क्या हो रहा है या किस तरीके से नई नई चीजों की हम कहेंगे कि इनोवेशन आपको देखने को मिल रही है, तो उसमें बड़ी आपको हेल्प होती है और नॉलेज मिलती है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी इस वीडियो में वो ये है कि इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फोकस रहता है किसी भी चीज में, वो ये कि वो अपने मुल्क में वो चीज तैयार करे। हालांकि पूरी दुनिया में जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आपको जब कम्पीट करना होता है तो इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे कि इसरो में भी उसने अपनी सर्विसेज दी बहुत ही चीप प्राइस पर, और अगर हम लोग इसमें भी बात करें तो अमेरिका में जो हाइपरलूप है उसके मुकाबले में वो काफी ज्यादा सस्ती भी है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप ना लोगों को ऑप्शन देते हैं कि एक चीज पर स्टिक मत हो,
आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कंट्रीज से अपनी चीजें जो हैं और ऑप्शंस रख सकते हैं। यार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आती है या आ गई हुई है तो इस पे जो है जब वो काम किया जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो नो डाउट आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अमेरिका से जो है इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद उसे चलाते हैं, फिर लास्ट बात है आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, इवन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए कॉस्ट है। वहाँ पे आपको यूएसडी में पे करना पड़ेगा, जो कि वाकई आपका जो है एक बोझ बनता है आपकी इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आपकी लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है ना, तो उसका बेनिफिट यही रहता है कि आपको जो है ना हर चीज़ आपके पास ही अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद ये जो है, क्योंकि ये ना पेट्रोल से चलेगी ना बिजली से चलेगी, ये जो है एक अपनी इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, तो आपको जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा जो है इनके ना होने के इसमें चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम रेलवेज की बात करें तो उसमें भी डीजल लोकोमोटिव जो है इस्तेमाल होते हैं। प्लेन की बात करें या जो फ्यूल से जितनी भी चलने वाली चीज़ें हैं, कार्बन एमिशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड इसकी बात करें तो नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है बेनिफिट रहेगा कि आप जो है ना यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। मतलब से जब ट्रेन भी हम देखते हैं उसमें भी हम लोगों को कुछ धुआं वगैरह तो नजर नहीं अब आता ना, मतलब लेकिन फ्यूल तो बर्न हो रहा है ना। हाँ, तो मैं ये बात सोचती हूँ कि पहले मतलब जब ट्रेन हम देखते थे तो मतलब जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हाँ। प्लेन का भी देख लो या ट्रेन का देख लो, तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वो डीजल यूज होता है तो मतलब वो इन्वायरमेंट में किस तरह से वो मिक्स हो रहा होता है। बेसिकली क्या नाम लेते हैं जब वो हाँ वो जलता है, डीजल जलता है तो उसमें से हीट जो है जिस तरह की उसमें से वो यानी कि आप कह लें कि धुआं तो नहीं हमें बज़ाहिर नजर आ रहा होता, लेकिन एक फॉर्म में जो है वो एनवायरमेंट में मिक्स हो रहा होता है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लेन से भी ज्यादा तेज भागे, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो में, जो जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है रादर देन कि वो इसको इंपोर्ट करे किसी और कंट्री से। वो खुद अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि आईआईटी मद्रास का बीच में जिक्र किया कि 70 जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर ये सारा जो जो टेस्ट एंड ट्रायल होंगे वो स्टार्ट करेगा। तो मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप अपनी कंट्री में ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हो, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हो जो आने वाले टाइम के लिहाज से चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा और बाकी सारी दुनिया के साथ मतलब उसी तरह कदम से कदम मिलाकर। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पाकिस्तान में बैठी हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाइपरलूप क्या है, लेकिन एक्सेप्ट दोज पीपल जो कि किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो मुझे लगता है कि जो बच्चों की, एक स्टूडेंट्स की एक इन्वॉल्वमेंट रहती है टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि एक तो आपकी सोचने का नज़रिया, सोचने का जो आपका एंगल है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है गवर्नमेंट की कि वो बच्चों के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। और आईआईटी की बात करें तो भाई मैं कहूँगी कि मतलब कितने मतलब लाइक जीनियस लोग यार वहां से निकल कर आते हैं। वो तो हमने बहुत सारे क्लिप्स में देखा हुआ है। हाँ, देखो तुम ये कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी वो लोग हेल्प कर रहे हैं और भी आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजों में उन्होंने एक कोलैबोरेट किया होगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, हम लोगों को उसका आइडिया नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ से पता चलता है कि आपके जो एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है यार। उसके साथ बेसिकली ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, उन्हें जो है कितने ज्यादा फंड प्रोवाइड्स कर रही है कि वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो नए जो चीजें जो हैं जो बन रही हैं उन पे जो है रिसर्च कर सकें यार। लेकिन उसके साथ आपकी लगन भी तो होती है ना कि हमने कुछ करना तो ऑफ कोर्स आपको जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो आपकी लगन जो है वो फिर अंदर से खुद ब खुद बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स फिर होते हैं जो यही कहते हैं कि हमने अपने फिर देश में रहना है, अपने मुल्क में काम करना है। तो ये जो लगन होती है ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज पे ही होती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ना हो तो फिर आप दूसरे कंट्रीज की तरफ जाते हैं। अभी कल मेरे फादर के साथ हमारी ये डिस्कशन चल रही थी, मैं और मौजम बैठे हुए थे कि वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है एजुकेशन का और मतलब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैं उनको ये बात कह रही थी कि एक आपका माइंडसेट भी होता है बच्चों का कि किस तरीके से उन लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि आजकल का टाइम अगर देखा जाए तो इतना डिजिटल एक टाइम है कि आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी सीख सकते हो, लेकिन फिर एक चीज वो है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए और आपकी लगन भी जरूर होनी चाहिए।
बाकी ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको फैसिलिटेट किया जाए तो वो तो सोने पर सुहागा है कि आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। एनीवे प्रोजेक्ट बहुत मजे का, आई होप हम लोगों को और इसमें जल्द से जल्द अपडेट सुनने को मिले और फिर हम आपके साथ बैठकर देखेंगे। आप जरूर बताइए इसके बारे में और कमेंट सेक्शन में आपका क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।